Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about the solution of algebraic and transcendental equation. Before I will share the screen, I will tell you what is algebraic equation and what is transcendental equation. An equation of the form a naught x is to the power n plus a1 x is to the power n minus 1 plus a2 x is to the power n minus 2 a3 x is to the power n minus 3, and where an is non-zero and highest power degree term is n is called an algebraic equation of degree n. जितने ऑर्डर की हमारी algebraic equation होगी उसके उतने ही रूट्स होंगे। और ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा क्या हो, साइन टर्म हो, कोसाइन टर्म्स हो, एक्सपोनेंशियल टर्म हो, लॉगरिथम टर्म हो, वो हमारी क्या होती है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होती है। अब बिफोर द स्टडी ऑफ द वेरियस मेथड, यहाँ हमें हमारे यहाँ टॉपिक है जो सिलेबस में, वो है सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। दैट्स व्हाई आई विल डिस्कस अलजेब्रिक इक्वेशन एज वेल एज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। नाउ इसके यहाँ तीन मेथड है। पहला है बाइसेक्शन मेथड, दूसरा रेगुलर फॉल्सी मेथड, तीसरा है हमारा न्यूटन रेफसन मेथड। तो बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है ये हम देखते हैं। बाइसेक्शन मेथड से पहले एक हमारी होती है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, वो भी हम यही डिस्कस कर लेंगे। If a function fx is continuous between a and b, yeah, in an interval a and b, and fa and fb are of opposite sign, that means one is positive then another is negative, then there exists at least one roots between a and b. तो a और उस इंटरवल ए बी के बीच में कम से कम एक रूट होगा, ये हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होती है। F A be negative and F B be positive, then the roots lies between A and B, and let its approximate value is given by x naught is equal to A plus B by 2. If fx naught is 0, then we conclude x naught is a root of the equation fx is equal to 0. Otherwise, the roots lies between x naught and B. Between x naught and A, depending upon fx naught is negative or positive. यानी सबसे पहले जो फॉर फर्स्ट इटरेशन हम क्या करेंगे, उस इंटरवल को बाइसेक्ट करेंगे और जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पे हम वैल्यू चेक करेंगे, वैल्यू हमारी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो वैसे ही जो हमारा अपोजिट साइन रहेगा उसी बेस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज बोल्जानो मेथड। Two initial approximations say x1 and x2 such that f of x1 into f of x2 less than 0, which ensure that the root lies between x1 and x2 are taken, and the next value say x3 as the midpoint of the interval x1 and x2 as computed. There are three possibilities. If f of x3 is 0, then we have a root at x3. F of x1 and f of x3 are of opposite sign, then roots lies between x1 and x3. Thus x2 and x3 have an thus x2 and x2 replaced by x3, and the new interval which is half of the current interval is a given bisection, is again bisect. Now, if f of x1 and f of x3 are of same sign, then the roots lies in the interval x3 and x2. Thus, x3 is replaced by x1 is replaced by x3, and the new interval is again bisected. And we will bisect the interval. That means what we are doing, we will reduce the size of interval in a multiple of 2. हम जो हमारा इंटरवल का साइज है उसको 2 के मल्टीपल से क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यानी लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होगी, इंटरवल मेरा ए बी है, क्लोज इंटरवल ए बी है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी कितनी, बी माइनस ए बाई 2। अगले इंटरवल क्या होगी, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। Look at here one problem. Given one roots of a non-linear equation x cube minus 4x minus 9 is 0 lies between 2.625 and 2.75. Find the roots correct to 4 significant digits. इंटरवल हमें दे रखा है 2.625 एंड 2.75, x1 एंड x2 है। फंक्शन की x1 पे वैल्यू देखी नेगेटिव, फंक्शन की x2 पे वैल्यू देखी पॉजिटिव। दैट मींस वी आर श्योर कि रूट्स लाइज बिटवीन दिस। Now for the first iteration x3 क्या होगा, x1 plus x2 by 2, this is 2.6875, and f of x3 is minus 0.3391, and since function of x1 and x3 this is minus 1 this is negative, sorry, this is positive greater than 0, therefore replace x1 by x3 and the new such interval becomes x2 and x3. This is 2.6875 and 2.75. Now for iteration 2, x1 is 2.6875 and x2 is 2.75.
फंक्शन की x1 पे वैल्यू नेगेटिव, फंक्शन की x2 पे वैल्यू पॉजिटिव, देन x3 इज बाइसेक्शन ऑफ दिस इंटरवल x1 plus x2 by 2, that is 2.7186, and function of x3, this is negative less than 0, therefore we will replace x2 by x3 and the new such interval is 2.6875 and 2.7186. बेसिकली हमें देखना क्या है, वैल्यू क्या आ रही है, इससे मतलब नहीं, हमें देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है. क्लियर? एंड द सेम मेथड इटरेशन 3, फंक्शन की x1 क्या है 2.6875, x2 क्या है 2.7186, तो फंक्शन की x1 पे वैल्यू नेगेटिव, x2 पे वैल्यू पॉजिटिव, तो x3 हमने निकाल लिया. फंक्शन की x3 पे वैल्यू नेगेटिव है, तो अब रूट्स किस किस के बीच लाई करेगा, 2.7031 एंड 2.7186. फॉर द इटरेशन 4, x1 2.7031 and x2 2.7186. बेसिकली बाइसेक्शन मेथड का एक ड्रॉबैक है कि बाइसेक्शन मेथड रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन. ऐसे इटरेशन 4 पर जो वैल्यू आई है वो 2.7109 है. अभी हम रिक्वायर्ड रूट की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं. इटरेशन 5 पे जो वैल्यू आई है दैट इज 2.707 है, तो रूट्स ऑफ 2.7031 और 2.707 के बाद डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक तो हम मैच कर रहे हैं. इटरेशन 6 को देखिए, इटरेशन 6 पर जो वैल्यू आई है वो 2.7075, 2.7051 और 2.707, थ्री प्लेसेस तक हम मैच कर रहे हैं. इटरेशन 7 देखिए 2.7061 एंड 2.707. इटरेशन 8 को देखिए 2.706 एंड 2.7061 एंड 66. देखो जितना हम इंटरवल को छोटा करते जाएंगे उसी वे में हमारे क्या होंगे, हमें रूट्स मिलते जाएंगे. ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे, अब इटरेशन 9 पे देखिए 2.7064 और 2.7066 है, यानी डेसिमल के बाद आपके 3 प्लेसेस तक वैल्यू मिल रही है. 2.7064 और 2.7066 आर नियरली अबाउट. That's why we observe that the iteration 7, 8 and 9 produce no change at we observe the first 4 significant portion, and therefore we take x naught is equal to 2.706 as the desired position, which is the correct to 4 significant digit. Basically देखिए बाइसेक्शन मेथड का एक तो ड्रॉबैक है, तो क्वेश्चन बाइसेक्शन मेथड से होगा तो कम से कम इट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन, और जो हमारा रूट्स मिलेगा वो हमें 8 से 10 इटरेशन में मिलेगा. क्लियर? जब रूट्स हमारा 8 से 10 इटरेशन में होगा तो हमें ये भी ध्यान रखना है, और जितने ज्यादा हम लार्ज नंबर ऑफ इटरेशन करते जाएंगे उतना ही हमें मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलता जाएगा. क्लियर? और जो लेंथ ऑफ इंटरवल है बाइसेक्शन मेथड में वो हमेशा 2 के रेशियो में कम हो रही है. जैसे हमने बताया कि एक रूट वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो रूट्स लाई करेगा. यदि वैल्यू पॉजिटिव होगी तो एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगी, और वैल्यू नेगेटिव होगी तो एक्स एक्सिस के बिलो लाई करेगी. अब जब इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा. दैट्स व्हाई वी विल से रूट्स लाई इन दैट पर्टिकुलर interval. Clear? And I think it's clear, and we will move to the next method, that is my regular falsing method. Clear? तो आगे हम क्या करेंगे, उसको प्रोसीड करेंगे. क्लियर? थैंक यू सो मच.